Hello students, it is Vinod Acharya. Last time we are talking about the velocity, different types of velocity. डिस्कस किया था हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड देन एवरेज वेलोसिटी. यस, लेट अस थिंक अबाउट वन थिंग. हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से. यहां से ऑब्जेक्ट की जर्नी स्टार्ट होती है और वो ऐसे जा रहा स्ट्रेट लाइन. इस पॉइंट पर हमने ऑब्जर्व किया उसको और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज मेजर्ड एट x1 एंड टाइम इज t1 एंड एट टाइम t2 द डिस्प्लेसमेंट इज h2. Then find out the velocity of the object in this interval. Then we have velocity, displacement by time, and displacement कितना हुआ? If it is the origin, this is x1 and this is x1 and this is x2, and then what about this? It is x2 minus x1 divided by time interval t2 minus t1. Yes, the displacement covered in a given interval of time, it is the velocity of the particle in this given interval. Yes, and then it means it is the change in position, change in time. I also write it delta x by delta t. Yes, no doubt it is the velocity, and then velocity is delta x by delta t. Delta x by delta t. And what is delta t? Delta t is the time period, the time duration. Time period of ऑब्जर्वेशन. हमारे ऑब्जर्वर ने इतने समय तक डेल्टा टी टाइम तक ऑब्जर्व किया है इसकी जर्नी को, इससे मोशन को, डेल्टा टी. इफ डेल्टा टी अप्रॉक्स टू जीरो, if delta t is small, if delta t is small, यदि टाइम इंटरवल थोड़ा ले लिया जाए then displacement is also small. if delta t approach to zero, यह लगभग जीरो जितना ले लिया जाए it means very very small, then delta x also approach to zero, but the ratio delta x divided by delta t has a finite value. याद आया? स्पीड में भी हमने ऐसा किया था. यस, थिंक अबाउट द स्पीड. whenever we are talking about the different type of speed, then उस टाइम भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आई थी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी फाइनाइट वैल्यू आती है और इसके ऊपर एक कंडीशन है लिमिट डेल्टा टी अप्रॉक्स टू जीरो. इट मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम व्हेनेवर the interval of the time is very very small, nearly equal to zero, then this, what is this? It is the displacement by time. It means the velocity. It means the velocity, and this velocity is called instantaneous velocity. Yes, today our topic of discussion is instantaneous velocity. Instantaneous velocity, the velocity of the object at any interval of time, at any instant of time. जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है, जो टाइम का इंटरवल है बहुत छोटा है. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, the velocity of the particle
at any instant of time, at any instant of time, the velocity of the particle at an instant of time is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity. And instantaneous velocity is delta x divided by delta t, and limit, it is the condition कि delta t approach to 0. Delta t approach to 0, it means delta t approach to 0, it means the interval is very small, the time interval is very small, and that's why we put it dx by dt. Dx by dt. Yes, dx means change in displacement divided by change in time. Displacement, because the change in time, the time interval is very small, it means the change in displacement is also very small, and we put it dx by dt. Yes, and this velocity is called instantaneous velocity. This velocity is called instantaneous velocity. Think about the instantaneous velocity. Instantaneous velocity is defined for an instant of time. देखिए, think about this line. Instantaneous velocity is defined for an instant of time. It means instantaneous velocity निकाली जाती है किसी भी क्षण के लिए, for an instant of time. And on the other hand, the average velocity or the velocity, AVG velocity or any other velocities is defined for an interval of time. Yes, interval of time. और जितनी भी वेलोसिटीज हैं वो किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उनको डिफाइन किया जाता है. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम. Yes, it's all about the different types of velocities. Let us do some numerical problems about this concept, about the velocity. On the basis of velocity, we have large number of problems in the boards. Let us consider some. A particle is moving along x-axis, yes, at time t1 is equal to 2 seconds. Okay, its position is x1, and that is equal to 3 meter. And at time t2 and t2 is equal to 7 seconds, its position is x2, and that is equal to 18 meter, What is the average velocity of the particle? What is the average velocity of the particle? Yes, एवरेज वेलोसिटी तो देखिए आप. सबसे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी का पता होना चाहिए. यस, एवरेज वेलोसिटी इज द
ratio of the total displacement toward divide by total time. यस चलिए डिस्प्लेसमेंट दे रही है x1 की पोजीशन कितनी है हमारी 3 मीटर, x2 18 मीटर. इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज yes it is the origin, it's the point x1 and it is x2. x1 is at 3 सिचुएशन स्केल यहां मीटर में लिया हुआ है यस और टाइम t1 है हमारा 2 सेकेंड और हमारे पास टाइम t2 है व्हाट अबाउट दी t2 दैट इज 7 सेकेंड. यस देन displacement delta x is equal to final position minus initial position and then 18 meter minus 3 meter and then we have total displacement is 15 meter. Total displacement is 15 meter. The time interval delta t and that is t2 minus t1 observation का final time, observation का initial time and final time is 7 second minus 2 second and then we have delta t is 5 second and then average velocity is total displacement divided by total time taken by the particle in his journey and then we have 5 3 जा 15 3 meter per second. We have 3 मीटर पर सेकेंड. यस अब ये हमारा क्या हुआ एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई है. ये हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई है. यस नाउ दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं हम. चलिए हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम है. अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस at time t1 and t1 is equal to 3 seconds. Yes, its position is x1 and that is equal to 40.5 meter. 40.5 meter and at time t2 and that is equal to 5.5 second. 5.5 second. Its position is at x2 and that is equal to 18.2 meter. 18.2 meter. What is the average velocity? What is the average velocity? Yes. देखिए अब हमारी सिचुएशन क्या हमें बता रही है. हमारे पास दिया हुआ है x1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 14. यस इस सिचुएशन में हम देखिए अब देखते हैं हमारे पास x1 दिया हुआ है. अब यहां से आपने ड्रा करना है बाद में इसका फिगर. x1 हमारे पास दिया हुआ है. x1 इज 14 पॉइंट इतने मीटर 40.5 मीटर and x2 is 18.2 meter. Okay, it means
आपकी ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये आपकी लाइन है, ये एक्स एक्सिस पर चल रहा है। अब पहले ये यहां है x1 और फिर ये यहां जाता है, इट इज x2, इट इज 18.2 मीटर, इट इज 40.5 मीटर, इट इज 40.5 मीटर। क्या ऑब्जर्व हो रहा है हमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो वो चल रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ नहीं चल रहा। वैसे चलता तो वो इधर जाना चाहिए था ना, यस, पर वो इधर आ रहा है, यस, कोई बात नहीं। हमने तो डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना हमें, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1। व्हाट इज x2? x2 कितना आपका 18.2 माइनस x1 14.5 और कितना आया माइनस कर रहे 22 माइनस 21.7 माइनस 21.7। 40 में से 18 रहे 22 3 और चले गए, यस। अब इतने मीटर हमारा ये आया है, यहां से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट कैसा आया हमारा, नेगेटिव। याद कीजिए अपना कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन दी मोशन ऑफ दी पार्टिकल, मूवमेंट किस तरफ है। चलिए अब निकालिए टाइम, डेल्टा टी एंड देन इट इज t2 माइनस t1 एंड व्हाट इज t2 माइनस t1? यस, t1 कितना हमारा 3, ये कितना है, कितना बचा 2.5 सेकेंड। व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी? व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी? एंड एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट 21.7 डिवाइड बाय 2.5 एंड देन माइनस में हमारा रिजल्ट आएगा, और कितना आया 8.68 मीटर पर सेकेंड। Yes, think about it. Think about it. Velocity having direction माइनस में आंसर। अब ये समझते हैं इसका मतलब, जैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ सकता है तो वेलोसिटी भी हमारी माइनस में आ सकती है, वेलोसिटी भी माइनस में आ सकती है। जब स्पीड की प्रॉब्लम की थी हमने, स्पीड तो देखा था आपने नेगेटिव आते हुए, नहीं, स्पीड हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास अब एक कंसेप्ट भी हमारे पास आता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए। तो इसमें क्या बताएंगे आप इसमें बताएंगे कि जो स्पीड होती है वो स्पीड हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी है हमारी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड को देखिए, अब स्पीड में क्या होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स वैल्यू ऑलवेज, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एंड इट मे बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, कोई सिमिलैरिटी भी नजर आती है आपको?
जो आपको नज़र आ रहा है इनमें सिमिलैरिटी भी नज़र आती है, कोई सिमिलैरिटी, ये तो डिफरेंस थे दोनों में असमानताएं थी ये, अब सिमिलैरिटी भी हो सकती है क्या दोनों में? कोई स्पीड एंड वेलोसिटी में कोई सिमिलैरिटी? यस। पहली तो ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, यस, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। दूसरा यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग मीटर पर सेकेंड, हैविंग मीटर पर सेकेंड, यस। तो प्यारे बच्चों, हमने स्पीड एंड वेलोसिटी का जो कंसेप्ट हमने पढ़ना था अब तक हमने वो सारे पढ़ लिए, और इसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, आपने उन प्रॉब्लम्स को ट्राई करना है। वो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम दी हुई हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपने देखनी है, उनको कैरी आउट करना है। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।